So this is the basic system is the Carnot cycle, reverse Carnot cycle, in which we have done two major modifications to make it practical, to make the Carnot cycle as practical. First is the expansion device turbine is replaced by the expansion device, right? And Sir, second his is, screen, sir, his screen is below second, clear. Sir, skin is not clear. So it is very much blur, sir. इमेज नहीं यस सर क्लियर हो रही है, स्क्रीन इज ब्लर्ड। सर So दिखाई it नहीं is दे रहा इतना। blurred. स्क्रीन ब्लर क्यों हो रही है? टैब दोबारा करते हैं। अभी देखिए, अभी बताइए स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir, now clear. Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes, sir, clear. मुझे लगता है मैं विंडो चेंज करूंगा तो फिर वो विंडो दूसरी विंडो बार बार मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए खैर देखते हैं। तो फर्स्ट इज दैट कंप्रेशन, wet compression is replaced by the dry compression, right? First modification is that wet compression in the Carnot cycle, it was the wet compression. और आपने यहीं से स्टार्ट किया था क्या? नहीं, मैंने लास्ट टर्म पे एक लेक्चर ले चुका हूँ ना। हाँ नहीं सर, वो तो बेसिक, अभी तो सर, अभी सर आपने यही स्टार्ट किया था ना अभी सर? हाँ अभी तो ये start, अभी ये ओके। this was the dry wet compression in Carnot cycle. It is replaced by the dry compression in vapor compression cycle. So when the wet compression is converted to dry compression, second change occurred in the condensation process. That initially the condensation process was isothermal process. This was 2 to 3 was the isothermal. But when it was the dry compression, so this compression was the isentropic compression. So this line goes outside to the dome. So it becomes the superheated. That's why this condensation process in the condenser now it is not remaining the constant temperature, but it is now the constant pressure process. First it is desuperheating, then the phase change process, that is condensation process. So the process in the condenser now it became the uh, constant pressure process, not the constant temperature. The first is the vapor wet compression is converted to dry compression. Second is this constant temperature process in the condenser is converted to constant pressure process in the condenser. Right. Third process, भी और लोग आ रहे हैं लगता है। कर लिया भैया, इन आपको भी कर लिया। So, and the third process, which was the expansion process, it was initially the constant isentropic process. This is now converted to isenthalpic process. In the Carnot cycle, it was the rectangle. So it was straight line, vertical line. So now it is converted to isenthalpic process. Was the in the Carnot cycle? This is the Carnot cycle. So in the Carnot cycle, this was the dry wet compression. Now in actual cycle, in vapor compression cycle, it has become the isentropic compression, but the dry compression. Dry compression. Why we call it a dry compression? Because the vapor is completely dry. It is not wet vapor.
At 1 dash, it is wet vapor. It is a mixture of liquid and vapor. So that's why it's called as wet vapor. So initially, in the Carnot cycle, it was the wet vapor before the compression, but in vapor compression cycle, before entry to the compressor, it has become to the completely dry vapor. So dry vapor after compressing becomes superheated. So that's why the condensation process, the process in the condenser became the constant pressure process, not the constant temperature. And Sir, G. why did we convert isothermal heat rejection process into isobaric? What is the benefit of it? Not we have done, but it has become because it is going outside the dome. ठीक, अगर हम इसे कांस्टेंट टेम्परेचर करना चाहते हैं तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पॉसिबल नहीं है सुपर हीटिंग, क्योंकि ये सुपर हीट रीजन में चला गया है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर सुपर हीट रीजन में पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर भी डिक्रीज हो और आपका कंडेंसेशन में और टेम्परेचर यानी कांस्टेंट रहे और यानी डी हीटिंग हो, यानी हीट रिमूवल हो, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। जब भी हीट रिमूवल होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट तो हीट रिमूवल है तभी हो सकता है, जबकि आपका ये यानी फेज चेंज प्रोसेस में ही ये पॉसिबल है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो रहा है और हीट रिजेक्ट भी हो रही है। ठीक है, ये हीट रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे, सर एक दिस इज द हीट क्वेश्चन। रिजेक्शन, राइट? Whenever there will be the heat rejection, the temperature change will also be there, will always be there. ठीक है, तो Yes, sir. it can be the मतलब constant pressure सर process only. It can only be the constant pressure process, not the constant temperature. तो सर We are जो not सर ये done it, but कांस्टेंट it प्रेशर जो है automatically be. जी, सर, जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये एक्चुअल प्रोसेस होती है। हाँ, actual process होती है। सर एक कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन था सर। सर एक कार्नोट साइकिल से था सर, कार्नोट साइकिल एक बार दिखाना सर उसको। ये रहेगा नक्शा। हाँ सर, इस कार्नोट साइकिल में सर ये साइकिल ऐसे ऑपरेट कर सकती है सर कि ये जो कंडेंसर है सर ये क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वर्क करे। कंडेंसर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, हाँ करती है ऑपरेट, उस पर करती है। मैं बताता हूँ ट्रांस क्रिटिकल साइकिल अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें यही होता है, लेकिन कंडेंसर नहीं होगा वो, उसे हीट एक्सचेंजर बोलेंगे। फिर कंडेंसर नहीं होगा ना, वो हीट एक्सचेंजर, मतलब उस सर पर ये जो टेम्परेचर भी चेंज होगा उसमें, और हीट रिडक्शन जब भी होगा तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा ना। अब इसमें फेज चेंज प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो ओके सर, वो अभी हम सर आगे पढ़ेंगे कलेक्ट CO2 साइकिल, लेकिन उसमें तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी, हीट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी वाटर विल बी रिक्वायर्ड देयर। ओके सर, ओके। ठीक है, सर वो स्लाइड में देखा था मैंने आपकी ना सर, वो पिछले लेक्चर में। इसमें है ट्रांसक्रिटिकल, ये पूरा कंप्लीट है नहीं क्या? सर, वो आपने जो मतलब पढ़ाया था ना, मैं रेफ्रिजरेशन वगैरह पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर में, तो उसमें सर एक था मतलब जिसमें कि ये कंडेंसेशन सर ऊपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर था पिछले सर। ट्रांसक्रिटिकल तो मैंने नहीं पढ़ा, पता नहीं नहीं सर, कहाँ पे। उसमें मतलब एक दे रखा था ऐसे ही, मतलब अब उसमें एक डायग्राम बना के दे रखा था कि ऐसे भी कार्नोट साइकिल हो सकता है, तो पूछ लिया जाए। हाँ, वो नहीं कार्नोट साइकिल, ये तो वेपर कार्नोट साइकिल है ना। गैस अगर है तो उसमें तो फेस का मसला ही नहीं रहता ना, जैसे एयर वाला जो होता है ना कार्नोट ओके साइकिल, एयर जैसे यूज करें, आपने एयर वाला देखा होगा वो, समझे? ओके लेकिन सर। तो उसके क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर तो वो भी नहीं होता। बहरहाल, तो उसमें फेस डायग्राम ही नहीं बना होगा ना, जो आपने देखा होगा उसमें ये फेस डायग्राम नहीं बना होगा ये। ठीक है सर, मैं आपको दिखाऊंगा सर, वो आपके लेक्चर में ही था सर स्लाइड में। हाँ, दिखाना वो क्योंकि फेस डायग्राम अगर है तो वो तो कार्नोट साइकिल में तो आमतौर पर नीचे ही होता है, फिर इसके ऊपर नहीं होता, इसके ऊपर सिर्फ एक ट्रांस क्रिटिकल सिस्टम होता है, CO2 सिस्टम होता है, पढ़ेंगे, लेकिन मैंने वो अभी तक नहीं पढ़ाया कहीं पे। ठीक है, तो बहरहाल क्रिटिकल के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन मेरे को पता लग गया। तो ये ड्राई कंप्रेशन रिप्लेस टू वेट कंप्रेशन, रिप्लेस टू ड्राई कंप्रेशन, एंड वेट कंप्रेशन इज कन्वर्टेड टू ड्राई कंप्रेशन, दैट इट the vapor which is coming out from the compressor, it became the superheated. That's why the process in the condensation will be
will not be the constant temperature, but now it became constant pressure process. And after that, the expansion process is there, the throttling in expansion device. Initially, in the Carnot cycle, it was isentropic process in the turbine. But turbine was not suitable for the refrigeration process. It is a very big device. It is and it is giving very small work. If we say that it is giving us the work output, so that work output is very small, because here at state point 3, this is the liquid, and specific volume of the liquid is very less. That's why the work done by the turbine is very less. So we cannot use the turbine for getting very small work. So that's why this turbine is replaced by a simple throttling device, which is simple and which is easier to do the expansion for the expansion process. But now this expansion process is isenthalpic process. The throttling device, the process, or in generally in small system we use the capillary. So the expansion will be there. Expansion means the pressure will be reduced. Pressure will be reduced. Now it is the condenser pressure, and this is the evaporator pressure, or you can say this is the suction pressure, and this is discharge pressure. So these system work between two pressure. One is the suction pressure, second one is discharge pressure, or one pressure is called as evaporator pressure, second pressure is called as condenser pressure. So in the expansion device, the refrigerant will be converted, will change its pressure. The pressure will be reduced from the condenser pressure to the evaporator pressure. The pressure will be reduced, but enthalpy in the expansion process, in the throttling device, the expansion process now become the uh, isenthalpy process, not the isentropic. Entropy is not constant, but the enthalpy will be constant. अभी हम TH diagram देखेंगे तो उसमें देखेंगे enthalpy is constant. PV diagram ये होगा इसका. So these are the major changes which have been done in the Carnot process, Carnot cycle, to make it as a practical cycle, that is vapor compression refrigeration system. This is called as vapor compression refrigeration system. This is the suction line. This is compressor. This is called a suction line before the entry to the compressor, and this is called as delivery line or discharge line. Here the work is input. We have input the work. Before compression, it is low pressure side. After compression, it is high compression side. In the condenser, there will be desuperheating and condensation. So this is discharge line. This is liquid line because now it became the liquid after condensation. Refrigerant became the liquid. That's why it's a liquid line, and that liquid is expanded in the expansion device. So that's why this is expansion line. Now it became the mixture, liquid and vapor, and that mixture, mainly the liquid is there. A small part will be converted to the vapor, but the major part before evaporator is the liquid. Yeah, major part is liquid, but a small amount of vapor is also there at 0.4. So when this liquid will pass through the evaporator, it will absorb the heat of vaporization. That is called as latent heat of vaporization, and it will be converted into the vapor. It will absorb the heat from the surrounding, latent heat, that is QL, and after taking latent heat, that liquid will be converted to the vapor. Now it is completely vapor. At point 1, it is completely vapor. This point 1, this point 2, and this is point 3, and this is point 4. Okay, this is low pressure side, this is high pressure side. This is the, so basically, now as compared to the Carnot cycle, we say definitely there is a loss of refrigerating effect. The Carnot cycle, this is the Carnot cycle. हम यहाँ तक मानते हैं. तो अगर हम इसे भी 1 पर ही माने अगर तो Carnot cycle के अकॉर्डिंग ये 1 चेंज नहीं करते हैं. तो दिस वाज द ऑपरेटिंग इफेक्ट इन द Carnot cycle. ये था.
अब हमारा 3 to 4 था पहले, अब ये 3 to 4 डैश था, 4 हो गया, 3 to 4 हो गया प्रोसेस एक्सपेंशन। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा ये होता है 1 - 4, H1 - H4, दिस वाज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। Refracting effect is reduced and work done is also increased. Initially work done क्या होता था, ये वाला वर्क डन था, इस बार द वर्क डन, ये वर्क डन था। अब वर्क डन में ये भी इंक्रीज हो गया, ये वाला पार्ट और इंक्रीज हो गया वर्क डन में। So this is the increase of this area in the work done. So work done is increased, refracting effect is decreased. So definitely the COP will be decreased as compared to the Carnot cycle. This is VCRS on pH chart. This is your isentropic process in the compression, 1 to 2 process, and 2 to 3 process in the condenser process with constant pressure in the condenser, but 2 to 2 dash is the desuperheating, and 2 dash to 3 it is condensation, and 3 to 4 process। अब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा क्योंकि ये एंथैल्पी है, यहाँ पर H एंथैल्पी डायग्राम है, pH डायग्राम है ये। तो अब ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी 3 to 4। This is constant enthalpy process. This is at condenser pressure, Tk, and this is at T0, entry temperature, and this will be T2, discharge pressure, discharge temperature। तो pH चार्ट हमारे पास होते हैं, pH चार्ट से भी हम देख सकते हैं वैल्यूज को। pH चार्ट से मैंने पहले भी आपको बताया था कि pH चार्ट से भी हम देख सकते हैं। जैसे ये pH चार्ट, और जैसे ये R134 के लिए pH चार्ट आपको दिखाएं। आपको मेरी ये वाली विंडो विजिबल हुई है जो मैंने अभी खोली है, दूसरा टेबल? यस सर। यस सर। सर पीएच चार्ट दिख रहा है। दिख रहा है ना pH चार्ट? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये pH चार्ट R134A के लिए है, तो ये pH चार्ट होता है इस तरह से। तो ये इसमें H होता है एंथैल्पी, और ये प्रेशर मेगापास्कल में या कहीं बाहर में होता है। ये टेम्परेचर लाइंस है, इधर ये स्टेट जो आ रही है, ये टेम्परेचर लाइन है 60, 80, 100, तो हाईएस्ट है इसका 100, यानी क्रिटिकल पॉइंट होगा इसका करीब करीब। तो उसके बाद से फिर ये यहाँ से फिर ये स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उसके बाद फिर ये डोम के बाहर ये लाइन टेम्परेचर वाली लाइन जो है इस तरह से ये कर्व लाइन है। ये डोम के बाहर जो ये लाइन है कर्व लाइन है, ये वाली लाइन है ना, ये कर्व लाइन है, ये टेम्परेचर लाइन है। चार्ट सर नहीं दिख रहा सर। सर वो चार्ट नहीं दिख रहा है जो आप समझा रहे हैं, ये जो आप पहले दिखा रहे थे वो दिख रहा है। पहले वाला वही तो मैं पूछा था आपसे, मैं ये पूछा था ना आपसे, वो देखो वो वहाँ से, ये देखो अमन अब आ रहे हैं, तो वो वहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा ना, मैं प्रिवेंट करने दूसरी विंडो में प्रिवेंट करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। फिर विंडो बार बार चेंज, इसमें ये था स्क्रीन में कि जो भी स्क्रीन आ जाता, स्क्रीन आपको विजिबल में ब्लर हो रही थी, एक बार दोबारा देखें स्क्रीन करके। यस सर। स्क्रीन यानी कि ब्लर हो रही थी आपको, वरना वो स्क्रीन में ये है कि पूरा कोई भी आप विंडो खोलेंगे तो वो स्क्रीन पर जो भी आएगा वो आपको विजिबल होता है, बेनिफिट होता है। अभी देखिए कि भाई स्क्रीन ब्लर होती है नहीं होती है, तो विंडो में बार बार हमें विंडो चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर, ताकि जो विंडो में एक बार लेंगे वही विंडो विजिबल होती रहेगी। सर अब ब्लर देखिए है ब्लर हो रहा है आपको? अरे अभी भी यस दिख सर। भी नहीं रहा। सर बहुत ब्लर है है? सर, विजिबल ही नहीं है। नहीं सर बिल्कुल तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। चलिए तो कुछ तो वही करता है, विंडोज कम से कम दिख तो रहा है ना। तो टैब कर लेते हैं। चलिए टैब से देखते हैं क्या है। अभी देखिए विजिबल हुई है? अभी बताइए बेटा, चार्ट विजिबल हुआ है?
नो सर, आपका स्क्रीन प्रेजेंटेशन आपको कुछ विजिबल हो रहा है आपको? विंडो के चलिए अब देखिए, अब ये विंडो विजिबल हुई है। अब बोलिए, विजिबल हुई है विंडो? यस सर। यस सर, ये विजिबल है। यस सर, दिख रहा है। तो ये पीएच चार्ट होता है। तो इसमें हमें किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वैल्यू चाहिए, जैसे ये तो डोम है R134A का, ये तो डोम है, इसका सैचुरेशन डोम ये दिखा रहा है। यहाँ से जा रहा है डोम है ये आपका डोम जा रहा है पूरा। ठीक है, इस पर हमें किसी पॉइंट में 1 पॉइंट है तो सीधे से 1 पॉइंट तो सैचुरेटेड पॉइंट होगा, है। तो हम जैसे 1 पॉइंट है हमारा, इस पर हम देख सकते हैं इजीली, डोम है ना, तो 1 पॉइंट कहीं भी होगा। तो 1 पॉइंट जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ सैचुरेशन है। अब नीचे आप जाएंगे, एच आपको मिल जाएगा सीधे सीधे प्रेशर पर। जैसे 0.2 बार आपका प्रेशर है, तो 0.2 बार जहाँ ये कट करेगा इसे तो डोम को, तो वो आपका 1 पॉइंट हुआ। जैसे ये 0.15 हमने ले लिया, यहाँ कट कर रहा है, ये 0.1 हुआ। तो आप नीचे आप जाएंगे तो आपको एच मिल जाएगा सीधा सीधा। और अब 2 पॉइंट की बात है सिंपल, कि 2 पॉइंट जो हमारा 1 से 2 कंप्रेशन है, 2 पॉइंट जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन द कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। तो ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है, आपको विजिबल और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है, लिखा है ना S इक्वल्स टू 2.16, 2.08, 2.00। ये जो इधर जा रही है ऐसे स्लैंट लाइन जो जा रही है ना, ये आपकी कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है। तो आपका जैसे ये 0.1 है तो आप इस पर कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन पर चलेंगे, ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है। तो जहाँ ये एंट्रोपी लाइन आपकी दूसरे वाले प्रेशर को कट करेगी, दूसरा प्रेशर आपका ये है, फॉर एग्जांपल आपका ये दूसरे प्रेशर की लाइन है ये। तो जहाँ ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन आपकी दूसरे प्रेशर को कट करेगी, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एंट्रोपी लाइन है, इसको कट के दूसरे प्रेशर को, वहाँ आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, सेकंड पॉइंट। ठीक है, फिर इसमें ऐसे वर्टिकल आप नीचे देखेंगे या ऊपर से देखें तो आपको इस तरह से वैल्यूज, एच की वैल्यू डायरेक्ट चार्ट से मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर तो ये तो सैचुरेशन में होता ही है 3 पॉइंट, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। और 3:4 होता है, H3:4 होता है। ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर देखना है कि 2 पॉइंट क्या टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर लाइन है। सर सबका क्रिटिकल पॉइंट एक ही जगह पे क्यों है इसमें? टेम्परेचर लाइन से आप देख सकते हैं क्या टेम्परेचर है। ये 100 की लाइन है, ये 80 की लाइन आ रही है, 60। सबका एक जगह नहीं है क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है, सिर्फ ये है क्रिटिकल पॉइंट, सबका कहाँ है। 100 के आसपास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 100 डिग्री के आसपास, 100 डिग्री के आसपास है क्रिटिकल पॉइंट। 80 डिग्री पर थोड़ी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है क्रिटिकल पॉइंट। सबका इसका सबका से काम लगता है, क्या कहना है, सबका अलग मतलब अलग सर होता है। जो सर ये क्रिटिकल पॉइंट आपका R134 का है, क्रिटिकल पॉइंट करीब 100 के आसपास है। ठीक है, मैं लिखा भी हुआ कहीं, अच्छा 100 के आसपास है। और ये 80 टेम्परेचर है, ये 80 टेम्परेचर की लाइन 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे हुआ, फिर इसके बाद स्ट्रेट चलेगा, फिर ये, तो फिर ये वाला लाइन है, ये 80 की लाइन है। 100 वाली यहाँ से आई ना क्रिटिकल ऊपर आ रही है, 80 वाली क्रिटिकल नीचे आ रही है, इसी बीच में 90 की जरूरत बना है। ये उसके बाद 100 के बाद की लाइन है, 100 बाद लिखा नहीं होगा, नीचे लिखा होगा टेम्परेचर, ये देखिए 120 है, फिर 140 है टेम्परेचर। ये 120 की लाइन है, ये वाली लाइन जो है 100 के बाद 120 की लाइन ऊपर ही से चली है, क्रिटिकल बहुत ऊपर जा रही है। ये 140 की लाइन बहुत ऊपर से जा रही है, 160 है।
सर ने लीव कर दिया क्या भाई? हाँ सर का लीव हो गया, बोला मान्य मेरी बात का। मैं तो खाली पूछ रहा था एक। अबे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है भाई, बुरा वाली बात नहीं है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ही है भाई, तो मजाक कर सकता हूँ। नहीं, वो स्क्रीन सर की ब्लड दिख रही है ना, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दिख रही है, हमको लगता है कि सर अपने घर पे हैं शायद, इसलिए हो रहा है, यूनिवर्सिटी में करेंगे तो नहीं होगा। नहीं, सर तो बोल रहे थे कि वो आके ऑफिस में ही लेक्चर लेते हैं। नहीं वो ये कह रहे थे तो डिपार्ट अभी कुछ दिन घर पे कर रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट जाएंगे। अच्छा अच्छा। अरे अब कहाँ चले गए सर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर। अरे मैसेज कर दो, कहीं पता नहीं है उनको, मैसेज कर दो भाई ग्रुप पे। सर ने लीव कर दिया क्या, क्लास हो गई? हाँ भाई, लीव कर हाँ। दिया। क्या मसला है ये? Sir, no sound. इस्लाम। अरे किसी को आवाज आ रही है सर की भाई? नहीं आ रही भाई। नहीं यार। सर बोल ही नहीं हेलो रहे हैं शायद। हेलो, मुझे आवाज आ रही है आपकी? आपको ठीक है आवाज आ सर। रही है मेरी? यस यस सर अब आ रही। Yes, sir. यस सर, अब यस। एक्चुअली वो कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम रही होगी। अभी आपको देखिए मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? नो सर। नो सर। नहीं दिख रही सर। नो सर। अभी ये आए तो हम कुछ करें, अभी तो ये चल ही रहा है, कनेक्टिंग शो कर रहा है बस। वॉइस तो आने लगी है लेकिन चलिए, पीएच चार्ट आपको थोड़ा सा बता दिया है, और आगे जब प्रॉब्लम करेंगे ना तो और पीएच चार्ट समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो इसी तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसकी। 1 to 2 प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। मेरी आवाज़ विजिबल हो रही है? मेरी आवाज़ ऑडिबल है आपको? जी यस सर। सर। सर यस सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। यस सर। हाँ, तो स्क्रीन वही कनेक्शन की प्रॉब्लम लग रही है हमें, कनेक्शन की प्रॉब्लम है। तो हमारा 1 to 2 प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ऐसे ही बता देता हूँ आपको। तो W होगा H2 माइनस H1। पहले भी आपको बता चुके हैं, इस तरह से एंथैल्पी के हेल्प से कैलकुलेट हो जाता है। W H2 माइनस H1 होगा कि आप स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन आप अप्लाई करते हैं कंप्रेसर में, तो वर्क डन विल बी H2 माइनस H1। पता नहीं क्या हो रहा है ये कनेक्शन की।
कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम। आवाज आ- आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। भाई ये जैम व्हाइट बोर्ड के लिए क्या स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है? हाँ, स्क्रीन विजिबल हो गई है। यस सर, हो गई। यस सर। यस सर। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुई बीच में। तो बहरहाल ये पीएच चार्ट था हमारा, जिसमें कि ये टेम्परेचर की लाइन होती है, ये इस तरह से आती है ऊपर से, यानी लेफ्ट में तो ऐसे आती है, यानी सब कूलिंग रीजन में तो ये तकरीबन वर्टिकल होती है। उसके बाद तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस रीजन में, इसके बाद ये इंक्लाइन लाइन रहेगी, फिर नीचे जाएगी। तो दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। और ये जो इस तरह से इंक्लाइन लाइन जाती है नीचे से ऊपर, एंट्रोपी लाइन होती है, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। और यहाँ से एक ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन भी होती है। ठीक है, तो ये सब में पीएच चार्ट में लाइंस होती हैं। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। तो हमारा वर्क डन, हम स्टडी प्लान जो क्वेश्चन अप्लाई करते हैं कंप्रेसर में, तो वर्क डन विल बी H2-H1। सिमिलरली हीट ट्रांसफर in condenser will be H2-H3. This is heat rejected in the condenser. This will be H2 minus H3. This will be the heat rejected in the condenser. And सर H3 वर्क डन में सर हम काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड क्यों नहीं करते सर? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता होगा ना सर वहाँ पर भी? एनर्जी कंप्रेसर चेंज नेग्लिजिबल होता है एक्चुअली, उसके अकॉर्डिंगली तो होता है चेंज, लेकिन बहुत, यानी वर्क डन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, पॉइंट्स में होता है ओके बहुत। सर। वर्क डन इन कंपैरिजन, जैसे कि वो 10 किलो जूल हो रहा है तो 0.1 हुआ, तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है करीब 0.1 का, बल्कि 0.1 से भी कम होगा, तो सर बहुत जो एयर नेग्लिजिबल होता स्टैंडर्ड सर जो एयर स्टैंडर्ड असम्पशंस थे वो सर थ्रू द सिलेबस रहेंगे क्या? है। एयर स्टैंडर्ड है ही नहीं ना, ये एयर नहीं यूज हो रहे ना। एयर स्टैंडर्ड में तो एयर के लिए होते हैं ना, वो तो एयर स्टैंडर्ड, तो इसमें एयर नहीं है ना, तो वेपर है वो बेटा। इंजन वगैरह के लिए था सर। वो इंजन के लिए थे, जहाँ पे एयर विल बी द वर्किंग फ्लूइड। सबसे पहला assumption ही ये था कि एयर इज द वर्किंग फ्लूइड। मतलब वो मतलब सब गैसेस के लिए नहीं है, वो पर्टिकुलर एयर के लिए है। हाँ, एयर के लिए। जिस साइकिल में एयर, ऑटो साइकिल में, क्योंकि एयर प्लस फ्यूल होता है, तो हम उसमें एयर मान लेते हैं कि एयर हम पर हम सारे यानी प्रोसेस कर रहे हैं, ये मान लेते हैं वो air। सर एक क्वेश्चन और था सर। हम्म। सर वो उसमें सर आपने जो मॉडिफाई करे था ना सर उसको, कि जो टरबाइन है उसको रिमूव करके और वहाँ पर एक थ्रोटलिंग डिवाइस लगा दिया था, हम्म। तो सर वहाँ पर फिर सीओपी पर सर क्या सर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? प्लीज होगा, सही सी बात है सीओपी, क्योंकि वर्क डन भी हमारा बढ़ रहा है कंप्रेसर में, और हमारा यहाँ से हमें जो वर्क मिलता है थोड़ा ही सही, लेकिन वो सर वर्क मिलता लेकिन सर हुआ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी तो सर उतना ही मतलब कम ज़्यादा हो जा रहा है, तो कम हो रहा है ना, ज़्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा है। हाँ तो सर कम हो रहा है, रेफ्रिजरेशन कम हो गया वहाँ हाँ, पर, और वर्क डन भी सर बढ़ गया तो ज़्यादा हो सीओपी रहा है। तो सीओपी तो घट ही जाएगा ना। तो सीओपी सीओ क्या होता है? हाँ, सीओपी होता अब है ऐसे ही सर रेफ्रिजरेशन। दूसरे वाले में। सीओपी ओके क्या ओके। होता है? रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन अपॉन वर्क इफेक्ट डन। डिवाइड बाय द वर्क डन। तो आप देखिए रेफ्रिजरेशन यस सर। इफेक्ट भी कम हो रहा है और वर्क डन बढ़ हम्म। रहा है, और ठीक सीओपी क्या सर। होगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। अब सर उसमें सर पीछे वाले में जाइए सर, जिसमें टरबाइन लगा हुआ था, तो उसमें रेफ्रिजरेशन सर बढ़ रहा है लेकिन वर्क डन उसमें नहीं, वर्क डन भी कम है इसमें, और रेफ्रिजरेशन यस ज़्यादा है। वर्क रेफ्रिजरेशन डन ज़्यादा तो अब सर। इसमें यहाँ कर देते हैं वर्क डन, तो ये हो जाता है ना, वर्क डन ज़्यादा हो जाता है ना, वर्क डन भी ज़्यादा हम्म। हुआ आपका, H2 माइनस और H1 सर करें, यहाँ पर और रेफ्रिजरेशन कम हो गया, रेफ्रिजरेशन कम हो गया। तो सर अब यहाँ पर अब सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अब कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, समझ नहीं आ रहा है।
अब ये किया तो है, देखो ये दोनों कंपेयर किए तो हैं, आपको ये नहीं देखा आपने, ये देखिए ये नहीं देखा आपने, ये कार्नोट साइकिल दिया दिखाया हुआ है, ये कार्नोट साइकिल लिखा हुआ है, कार्नोट साइकिल होता तो ऐसे होता, ये कार्नोट ठीक। साइकिल है और ये आपका एक्चुअल साइकिल है जो आपने वेपर कंप्रेशन ये है। ओके। ठीक है, वर्क डन भी बढ़ गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी आपका जो है लॉस हो गया है, और वर्क डन भी आपका डिक्रीज हो गया पॉजिटिव वाला, और निगेटिव वाला भी आपका वर्क डन बढ़ गया है। तो सबको देखते हुए टोटल नेट वर्क भी आपका डिक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया नेटवर्क आपका, इनपुट नेटवर्क इनपुट इंक्रीज हो गया है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका डिक्रीज हो गया है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर ये जो सुपर हिट हॉर्न जो ऑब्टेन्ड हो रहा है सर, तो इसका क्या सिग्निफिकेंट है सर? सुपरडिम हॉर्न इसी को कहते हैं कि जो क्योंकि हमारा ये सुपर हीट रीजन में चला जाता है, तो इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, अगरचे कि इसमें कार्नोट में हमने मान लिया कांस्टेंट, लेकिन पॉसिबल नहीं है इसमें। तो जैसे भी आप कोई भी हीट एक्सचेंजर आप लगाएं, जब भी आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब भी आपका हीट रिजेक्शन होगा, आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर वाटर के थ्रू हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट इज रिजेक्टिंग हीट, जब हीट रिजेक्ट होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो it is the superheat. The superheat horn means that this is horn type, and this is the increase of work. This is the increase of negative work. This area 2 dash लिखा है, this area 2 dash 2 double dash superheat horn represent increase of negative work. This is यस the सर। increase of negative work. Negative work यानी input work हमारा increase हो रहा है, that is superheat horn due to superheating. This increased work is increased due to superheating, because in the compression your vapor gets superheated. Whenever the temperature is increased, the temperature will also be increased. So the temperature becomes like that, that it is superheated at the condenser pressure. कंडेंसर प्रेशर पे, उस कंडेंसर प्रेशर पे सुपरहीट होता है, जिस प्रेशर पर हम यहाँ ओके पर सर, थैंक यू वेरी वर्क कर रहे मच। हैं। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन हो गई बस आपका, है ना, और ये हीट रिजेक्टेड हो गई आपके कंडेंसर में, और आपका इसमें तो क्या होता है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होता है ये, इसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस है जनरली कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, and refracting effect is H1 minus H4. This is the refracting effect, H1 minus H4. This is the heat absorbed by the refrigerant, or this is also called the refracting effect. This is the basically the heat absorbed. This is the latent heat which the refrigerant is absorbing to convert its phase from liquid to vapor. थोड़ा सा वेपर भी है, वेपर तो हीट नहीं लेगा इसमें, इसमें क्या है 4 पॉइंट पर लिक्विड भी है वेपर भी है, लेकिन वेपर थोड़ी सी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तकरीबन ये 20% अगर है तो 20% लिक्विड है, 80% वेपर है, सॉरी 20% वेपर है, 80% लिक्विड है, तो वो जो 80% लिक्विड है दैट विल एब्जॉर्ब द हीट एंड कन्वर्ट कम्प्लीटली वेपर। वेपर तो है ही वेपर, वेपर तो रहेगी वेपर, वेपर का कोई हीट नहीं लेगी वेपर को, वेपर विल नॉट एब्जॉर्ब द हीट बट द लिक्विड विल एब्जॉर्ब द हीट। जैसा हम चाहते हैं कि ज्यादा इधर आ जाए, कम से कम परसेंटेज रहे, हम चाहेंगे बिल्कुल इधर आ जाए, लेकिन बिल्कुल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन इसलिए हम सुपर कूलिंग इसलिए हम क्या करते हैं, इधर इसकी सब कूलिंग करते हैं, सब कूलिंग करते हैं, थोड़ी सी सब कूलिंग और करेंगे इसमें नहीं, और हमें एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड करेंगे कंडेंसर में, या फिर एक्स्ट्रा हम हीट एक्सचेंजर लगाएंगे ताकि ये सब कूलिंग हो जाए इसकी। तो सब कूलिंग होगी तो ये और इधर आ जाएगा थोड़ा, अभी आप आगे देखेंगे हम पढ़ेंगे ना, इसे 3 डैश में आ जाए ताकि आपका 4 जो यहाँ हो जाए, तो जिससे कि इसमें ज्यादा लिक्विड हो जाएगा तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, देखिए फिर हीट एब्जॉर्ब या H1 में H4 हो जाएगी हीट एब्जॉर्ब, तो रिफ्रेक्टिंग इफेक्ट हमारा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज्यादा लेटेंट हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, और उतना ज्यादा वो रिफ्रेक्टिंग इफेक्ट मिलेगा। So refrigerant effect is basically the heat absorbed by the refrigerant and that is equals to H1 minus H4. And this is called as refrigeration load or refrigerant effect. ठीक है, इसी रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सर्कुलेशन रेट से, तो देन इट इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। अगर सर्कुलेशन रेट से मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो इसकी अभी तो यूनिट आपकी ये किलोग्राम पर सेकंड में थी, आपकी यूनिट किलोग्राम पर सेकंड में होती है, जनरल यूनिट जो होती है इसकी, है ना, और ये किलोवाट होती है सॉरी ये जूल होती है ना, ये जूल होती है, जूल पर केजी होती है, बल्कि ये जूल पर केजी, एच जो है जूल पर केजी पर यूनिट मास था ना, तो ये जनरली केजी से करें तो वाट में आ जाता है, वाट में या किलो वाट में समझ लीजिएगा, ज़्यादा होती है तो किलो वाट में। लेकिन जो इसकी ट्रेडिशनल यूनिट है दैट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। आपने देखा होगा ना कितने टन का एसी है, 4 टन का है भाई, 2 टन का एसी है, 1 टन का एसी है,
तो टन में होती है जनरल रेफ्रिजरेशन की यूनिट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज जनरली टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टीआर, 1 टीआर 2 टीआर लिखते हैं। तो 1 टीआर इन किलोवाट, 1 टीआर इज 3.5167, और वो मैंने आपको पहले भी आपको डिफाइन किया था कि टन की रेफ्रिजरेशन क्या होता है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन is basically the refrigerating effect, which, or you can say the heat absorbed by the water, which is at 0 degree centigrade when it is converting into the ice is converted into water. Ice at 0 degree centigrade converted into the water. The heat absorbed is called as 1 ton of eruption, 1 ton of ice. Or you can say the heat removed by the water at 0 degree centigrade to convert it into the ice at 0 degree centigrade. 1 ton of water जितनी heat आपकी absorb करेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस बनाने में, उसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, so that heat is called as 1 ton of refrigeration, 1 ton heat, 1 TR, that is equal to, आप कैलकुलेट भी करेंगे ना तो आप लेटेंट हीट लेंगे तो 1 टन वाटर लेंगे आप, 1 टन का वाटर की करीब 980 के आसपास होता है। 1 टन वाटर लेंगे, उसको लेटेंट हीट आपकी जो होती है वाटर की, जो लेटेंट हीट होती है वो लेटेंट हीट लेंगे आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख लेना कितनी होती है, उससे कैलकुलेट करेंगे तो आपका यही आ जाएगा किलोवाट, 3.5167। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ कॉमन यूनिट, ट्रेडिशनल यूनिट, 1 टन ऑफ पेट्रोल। ठीक है बेटा, अच्छा सीओपी क्या हुआ फिर, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय द वर्क डन, H1 by H4 डिवाइड बाय H2 minus H1, दिस इज द सीओपी फॉर द कूलिंग, एंड सीओपी फॉर द हीटिंग विल बी हीट इजेक्टेड H2 minus H3 इन द कंडेंसर डिवाइड बाय द हीट वर्क डन, दिस इज फॉर द हीटिंग। अगर हमारा हीटिंग रिक्वायरमेंट है, हीट पंप है हमारा, तो H2 minus H3 विल बी द डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय द हीट वर्क डन। ठीक है, सिमिलरली थियोरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, वॉल्यूम ऑफ सक्शन वेपर, वॉल्यूम सक्शन वेपर क्या है, V1, V is the small v is the volume of the suction vapor. So this is called a theoretical piston displacement. This is the suction vapor, volume of suction vapor. This is m dot into V1. And volumetric efficiency आपने पिछले साल तो पूरा पढ़ा है डिटेल से, theoretical piston displacement divided by actual piston displacement. This is the volumetric efficiency, that is V dot divided by Vp, actual piston displacement. So this is the volumetric efficiency. So detail पढ़ा है. Power consumption will be m dot into W, m dot H2 minus 1. This is the power consumption. 1 HP is 746 watt. 746 डिवाइड कर देंगे तो एक HP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो, और आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप पूरा पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में, समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है बेटा, टाइम हो गया आपका, नेक्स्ट लेक्चर भी होगा आप लोगों का। ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी से आप लोग, और ये कर देंगे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर मेरा डी सब्जेक्ट में कुछ नहीं है। मैं आरएससी सिलेक्ट किया था, तो मुबस्सिर सर से मैं बात किया तो उनसे मैं बोल दिया कि मेरा आरएससी ऐड कर दे, तो मैं क्या क्लास कर सकता हूँ? हाँ कर लीजिए, बिल्कुल आप क्लास करते रहिए, लेकिन मुशीर भाई से एक बार और दोबारा रिमाइंड करवा देना, उन्हें भूल भाल ना जाए। आज सुबह मैंने फिर से मेल और व्हाट्सएप पे डीएम दोनों ही कर दिया कि आरएससी ऐड कर दे। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।